السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا ہے کہ خداوند اب سے راضی ہوں۔ میرا نام ندیم عظیم ہے۔ میں ایک محقق اور مصنف ہوں۔ میں شوگر کا مریض ہوں۔ میں اب سے شیئر کروں گا کہ میں طرز زندگی میں تبدیلی اور صحیح غذا کھانے سے اپنی شوگر کو کیسے کنٹرول کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ اب شوگر کے بارے میں تعلیم حاصل کریں گے اور دوسروں کے ساتھ معلومات کا اشتراک کریں گے۔ شکریہ۔ اس ویڈیو میں ہم ایسے 9 پھلوں کے بارے میں بات کریں گے جنہیں اگر اعتدال کے ساتھ کھایا جائے تو شوگر والے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے پھلوں کی سرِ فہرست میں ایک ایسا سپر فروٹ ہے جو ہمیں آسانی سے دستیاب ہے۔ ہم آملے کی قدر کو صدیوں سے جانتے ہیں۔ آملے ذیابیطس کے مریضوں کے لیے ایک مستقل اضافہ ہونا چاہیے اور اسے ہر روز کھایا جا سکتا ہے، لیکن اعتدال میں۔ آملے بہت طاقتور ہوتے ہیں اور کسی کو روزانہ 4-5 سے زیادہ آملے نہیں کھانے چاہیے۔ ہر چیز اعتدال میں کھانی چاہیے۔ آملوں کے بے شمار خوبیاں اور فوائد ہیں۔ آملہ در حقیقت وٹامن سی کا دوسرا سب سے طاقتور ذریعہ ہے اور یہ سب سے طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ پر مشتمل خوراک ہے جو انسانوں نے دریافت کی ہے۔ جب ذیابیطس کے مریضوں کے لیے پھلوں کی بات آتی ہے تو آملہ دراصل بادشاہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ذائقہ بہت اچھا نہیں ہے۔ اس لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ گاجر یا دیگر پھلوں کے جوس کے ساتھ 4-5 آملوں کا جوس شامل کر کے نوش کیا جا سکتا ہے۔ لوگ آملے کا اچار بھی پسند کرتے ہیں۔ آملے ہمیشہ دوپہر کے کھانے کے ساتھ کھانے چاہیے۔ صبح کے وقت نہ کھائیں تو بہتر ہے۔ زیادہ مقدار میں کھانے سے صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگلا پھل جامن ہے، جسے انڈین بلیک بیری، جمبولان، بلیک بیرے، پرتگالی بیرے، آجمی کا بھی کہا جاتا ہے، جو کہ شوگر کے مریضوں کے لیے ایک بہترین انتخاب ہے جس کا GI 25 ہے۔ جامن اور جامن کے بیجوں کا پاؤڈر خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ جامن کے بیج انسولین کی پیداوار میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ یہ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے ایک بہترین انتخاب ہے۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹس اور پولی فینولز کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ وٹامن سی، آئرن، کیلشیم اور پوٹاشیم سے بھرپور یہ ہاضمے میں بھی مدد کرتا ہے۔ آپ کسی بھی وقت جامن کھا سکتے ہیں اور اب پینے کے لیے جوس بھی بنا سکتے ہیں، جو بنانا بہت آسان ہے۔ بس گودا لیں اور تھوڑا سا نمک ڈال دیں۔ اب جاگری پاؤڈر بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اسے بلینڈ کریں اور یہ پینے کے لیے تیار ہے۔ یہ بہت مزیدار ہے۔ اب بات کرتے ہیں امرود کے صحت سے متعلق فوائد کے بارے میں۔ امرود کا پھل جنوبی ایشیا، برازیل، کولمبیا، وینزویلا اور میکسیکو میں بڑے پیمانے پر اگایا جاتا ہے۔ پھل اکثر تازہ کھایا جاتا ہے یا مشروبات اور جام میں تبدیل ہوتا ہے۔ میں وینزویلا میں ایک مٹھائی کی دکان کے ساتھ رہتا تھا جو امرود کی مٹھائیاں بناتی تھی۔ کیا آپ نے امرود سے بنی کوئی مٹھائی کھائی ہے؟ ہمیں کامنٹس میں بتائیں۔ یہ اکثر دواؤں کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، بشمول پھلوں کے پتے اور رس کے۔ شوگر کے لیے سب سے موزوں امرود میں فائبر کی مقدار بہت زیادہ ہونے اور گلیسیمک انڈیکس کم ہونے کی وجہ سے ذیابیطس کی نشو و نما سے بچاتا ہے۔ فائبر کی موجودگی شوگر لیول کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے۔ کم گلیسیمک انڈیکس خون میں شوگر کی سطح میں اچانک اضافے کو روکتا ہے۔ خطے کے لحاظ سے اس کا گلیسیمک انڈیکس 12 سے 45 ہے۔ 100 گرام سرونگ کے لیے اس میں 51 کیلوریز ہیں۔ فائبر 5 گرام، کاربوہائیڈریٹ 9 گرام، اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور، وٹامن اے اور B9۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وٹامن سی کے بہترین ذرائع میں سے ایک امرود ہے؟ امرود میں وٹامن سی کی مقدار مالٹے سے 4 گنا زیادہ ہے۔ وٹامن سی آپ کو عام بیماریوں اور جراثیم سے بچاتا ہے اور وٹامن سی قوت مدافعت بڑھانے میں بھی مدد کرتا ہے۔ وٹامن سی جسم میں پیدا ہونے والے آزاد ریڈیکلز سے لڑنے اور کینسر کے خلیوں کی نشو و نما کو روکنے کے لیے ٹھوس اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پر کام کرتا ہے۔ خوبانی اصل میں چین اور بھارت میں اگائی جاتی تھی، لیکن اب پوری دنیا میں اگائی جاتی ہے۔
दूसरे फलों के मुकाबले में खुबानी को अक्सर नज़रअंदाज किया जाता रहा है, लेकिन ये अब पूरी दुनिया में बहुत मकबूल हो रही है, इसलिए नहीं कि ये बहुत लजीज होती हैं, बल्कि इसलिए कि वो बेशुमार सेहत के फ़वाइद से भरपूर होती हैं। मसलन ज़ियाबीतस के मरीज़ों के लिए बेहतरीन और इंसुलिन की मुज़ाहमत की सलाबत का मौजूद होना। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी आला सतह में होती है। ज़रूरी मदनियात जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और पोटाशियम के अलावा तमाम बी विटामिन्स ए, सी, ई और विटामिन के भी वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। दिल और प्रेशर के लिए भी मुफीद है। अब ताज़ा या खुश्क खा सकते हैं, लेकिन महफूजा नहीं, क्योंकि वो शरबत में शामिल चीनी के साथ महफूज की जाती है। अब खुबानी को अपनी रोज़मर्रा की खुराक का हिस्सा बनाएं। आड़ू शुगर के मरीजों के लिए मज़ेदार और दोस्ताना फल है। आड़ू शुगर के शिकार लोगों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद भी है। ब्लड शुगर की सतह को कम रखने के लिए इनमें फाइबर की मिकदार ज़्यादा होती है। विटामिन ए और सी है और पोटाशियम, जो आपके दिल के लिए भी अच्छा है। इसमें सिर्फ 58 कैलोरीज हैं, 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स और 2 ग्राम फाइबर। वो हाइपरग्लिसीमिया से लड़ने के लिए पॉलीफिनॉल से भरपूर है और इंसुलिन मुज़ाहमत के लिए भी। आप आज एक आड़ू ज़रूर खाइएगा। आइए बेरी के बारे में बात करते हैं। इससे हमारा मतलब स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और रसबेरी है। लेकिन क्या वो शुगर वालों की मदद करते हैं? हम इसके बारे में मालूम करेंगे। ये बेरियां एक खजाना है, एंटीऑक्सीडेंट और सोजिश को कम करने वाले मवाद से भरपूर। विटामिन सी और के, मैग्नीशियम और पोटेशियम उनमें सिर्फ 84 कैलोरीज हैं, 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 4 ग्राम फाइबर। उनका जीआई सिर्फ 25 है। वो आपके खून की शुक्र की सतह में इजाफा को कम करने के लिए हाजमे को सुस्त करती हैं। स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरीज इतनी लजीज होती हैं कि उन्हें वैसे ही खाया जा सकता है या सेहतमंद नाश्ते के लिए दही के साथ खाया जाए। आप उन्हें खाना कैसे पसंद करते हैं? हमें कमेंट में बताएं। वो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने, दिल के दौरे को रोकने, हमारी हड्डियों को मजबूत करने और कैंसर को रोकने के लिए भी मौजू है। अगर आप इन तमाम मालूमात और तहकीक को सराहते हैं जो इस तरह की वीडियो बनाने के लिए जाती हैं, तो बरा करम लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं और सभी को मुंतखब करें ताकि नई वीडियोस रिलीज होते ही हासिल करें। शुक्रिया। बहुत से लोगों का ख्याल है कि फल जैसे माल्टे शुगर के लिए गैर सेहत बख्श हैं और उनसे परहेज करना चाहिए। माल्टे दर हकीकत शुगर के लिए मौजूद ग़िज़ा का एक सेहतमंद उनसर हो सकता है। माल्टे फाइबर, विटामिन्स, मदनियात और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरे होते हैं जो उन्हें ग़िज़ाइयत का बेहतरीन ज़रिया बनाते हैं। जब आपको ज़ियाबीतस हो तो आपको एतदाल में खाना चाहिए। माल्टे ग्लिसेमिक इंडेक्स में कम है। फाइबर 4 ग्राम। फाइबर से भरपूर ग़िज़ा खून में शुगर के बेहतर कंट्रोल से मुंसलिक है। फाइबर खाने के बाद खूनी शुगर की अचानक ज़्यादती को कम करने में मदद करता है और इसी तरह खूनी शुगर की सतह को मुस्तहकम रखने में मदद करता है। शुगर के मरीज़ माल्टे में पाए जाने वाले बेशुमार विटामिन्स और मदनियात से फ़ायदा उठा सकते हैं। दरमियाने साइज़ के माल्टे में विटामिन सी की मिकदार रोज़ाना की ज़रूरत का तकरीबन 91% है। माल्टे एक एंटीऑक्सीडेंट भी है, जिसका मतलब है कि ये आपके जिस्म को फ्री रेडिकल्स की वजह से होने वाले नुकसान से बचाता है। माल्टे में फोलेट भी ज़्यादा होता है। शुगर के मरीज़ मुख्तलिफ तरीक़ों से फ्लेवोनॉइड एंटीऑक्सीडेंट से फ़ायदा उठा सकते हैं, बशमूल सोजिश में कमी, तनाव की रोकथाम और इंसुलिन की हसासियत में बेहतरी। मुतालियात से पता चलता है कि ये मदनियात इंसुलिन के खिलाफ मुज़ाहमत और खूनी शुगर के इंतज़ाम को बेहतर बनाता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, दिन में एक सेब रखता है डॉक्टर को दूर, इसलिए कि सेब बे इंतहा फ़ायदामंद है। सेब में 86% पानी होता है, 96 कैलोरीज,
4.5 ग्राम फाइबर। तहकीक से पता चलता है कि सेब में विटामिन ए, B1, B6, B2, विटामिन सी, विटामिन ई और के, मदनियात जैसे कॉपर, मैग्नीशियम, पोटाशियम और पॉलीफिनॉल, फाइबर जैसे पैक्टीन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे पॉलीफिनॉल होते हैं। ज़ियाबीतस के लिए सेब का GI सिर्फ 38 होता है। सेब लबलबा के बेटा खलियों की मदद करते हैं जो इंसुलिन पैदा करने के जिम्मेदार हैं और जो ज़ियाबीतस के इंतज़ाम और उससे लड़ने के लिए कलीदी हैसियत रखते हैं। तो सच है, दिन में एक सेब रखता है डॉक्टर को दूर। फालसा जामुन और आंवला की तरह एक और सुपर फल है। ये फल सिर्फ चंद हफ्तों के लिए ही मुयस्सर होता है और ये बहुत नाजुक मिजाज फल होता है, इसलिए इसकी नक्लो हमल मुश्किल है। गर्मी के चंद महीनों के लिए आप इस सुपर फ्रूट के फवाइद से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। ये जनूबी एशिया में दस्तयाब है। शुगर के मरीजों के लिए बेहतर है कि वो ताज़ा फल खाएं और बाजारी जूसों से उपरहेज करें। लेकिन अगर आपको किसी भी फल का जूस बनाना है तो कोई चीनी न डालें, खास तौर पर सफ़ेद प्रोसेस सदा चीनी, जो कि चीनी की बदतरीन किस्म है। आप शोकर डालने की कोशिश करें और फिर आप स्टेविया जैसी मस्नूई मिठास का इस्तेमाल करें, जो कि पौधों से बना स्वीटनर है और केमिकल नहीं है। न्यूट्रिशन के हिसाब से 100 ग्राम फालसा में 72 कैलोरीज होती हैं और फाइबर 1.2 एंजाइम्स को मुनज़्ज़म करने के लिए कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस और सोडियम से भरपूर। पट्ठों की ताकत के लिए इलेक्ट्रोलाइट, निज़ाम हाजमा के लिए मदद करता है। ज़ियाबीतस और दिल की मदद करने के लिए बहुत से एंटीऑक्सीडेंट और बहुत कम GI है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा। बरा करम इस वीडियो को ख़ानदान और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आप सदका जारिया हासिल कर सकें। कमेंट में दिल भेजकर कुछ मोहब्बत का इजहार करना ना भूलें और बरा करम लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी मुस्तक़बिल की वीडियो हासिल करने के लिए घंटी बजाएं। खैरियत से रहें और टेंशन नहीं लेने का।